Hi Rahul. Hi Harshita, how are you? I'm good, thank you. Rahul, do you know I have a channel Oh on yes, YouTube? I Yeah, yeah. know. I have seen some of your videos. Yeah, so I'm interacting with a lot of researchers worldwide and they have a lot of questions. They are really confused if they are on the right path. So can you just help them? Happy to help. Okay. So Rahul, you're very famous for career guidance. Can you tell us about your career? My career? Let me begin with my parents' career. So when my parents were building their career, we used to have a career for lifetime. Now you have lifetime of careers, and I've gone through the same. So when I was an undergrad student at NTU, I wanted to be a theoretical physicist. Somehow, when I graduated, I ended up in a bank where I spent a good decade there. And then I made a switch to writing books. Before I had a accidental foray into academia, and now I am advising at NTU in strategy and marketing. So Rahul, was it easy for you to reach here? You have come to Singapore from Ayodhya. You must have faced your own challenges. How was it? Um, I won't say it was easy or difficult, but the journey was really interesting. So, as you rightly pointed out, I'm from Ayodhya. I did my schooling in Lucknow, and I was always fascinated by seeing the world. So, I wanted to see the world, but I didn't have the means to do it. So I realized very quickly that the only way I could see the world was if I got a scholarship to study overseas. So I looked at all the universities that I could. I used to read their brochures. I used to figure out, okay, what scholarships are available. Unfortunately, I chanced upon scholarship in Singapore, and then applied, and I forgot about it. Fast forward, I got admission. I'm very happy for it. So yeah, so that was my biggest break, I would say, coming from India to Singapore. And once I was in Singapore, it kind of gave me that raised platform, which then allowed me to go to many other places. So when I was in my first year, I went to Hong Kong, China, and Macau. Yeah. Yeah. Then in my second year, I went to Switzerland, where I was interning on light, essentially. Okay. Then in my third year, I went to US again, working on nanotechnology and light. So it was easy from then, but I would say the difficult part was getting here because it was highly competitive. But after coming here, rest was easy. That's true. And a lot of people dream about going abroad for their bachelor's. While listing all the uh, by listing all the potential universities where you will take admission, I I hope there must be some nervousness because you were going abroad directly after your high school. So how did you overcome it? So I think I always wanted to go overseas. So that was there are two ways of looking at it. One is that you are afraid of what is there in something that you don't know about, and the other one is you're excited about what can be out there. So I think I was more of the latter. That excitement of seeing something new was always more than the fear of the unknown. So I was always looking forward to that. Okay. So, but there are a lot of students at that time, they don't have that much maturity and there's just anticipation. How do you think, how can they prepare themselves for any such opportunity where they have to go abroad for their bachelor's Yeah. or master's? So I think now you have much more avenues. So you need to remember when I came to Singapore, when I came overseas, Facebook was not yet launched, Yeah. right? So that was a very different era. Yeah. Okay. So at that time, you did not have so much access to information. So the only way you could come to know about a university, or if you got admission into a university, whether the university is good or bad, what is the career prospect after it, the only way was कि किसी चाचा के दोस्त के बेटी के फ्रेंड का कहीं पे एडमिशन हुआ खानदानी है, रिश्ता निकालो। हाँ तो वहाँ से निकालो और पता करो कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसी है। तो जब मैं सिंगापुर आया था तो लोग बोलते थे बेटा सिंगापुर में पढ़ाई भी होती है, हमें तो लगा था खाली वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं। सो इट वॉज वेरी डिफरेंट। आज आपको पता है, आज आपके पास टूल्स हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स नहीं होते जब मैं आया था, राइट? आज आपको पता है कि आप क्यूएस में, टाइम्स हायर एजुकेशन में या यूएस न्यूज़ में जाके आप यूनिवर्सिटी के रैंक्स चेक कर सकते हैं। उस समय नहीं था ऐसा। ओके, तो सबसे बड़ी तो ये इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी। आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक अब जो है
अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम करना है तो आपको बहुत सिंपल है, बहुत से टूल्स हैं आपके पास, लिंक्डइन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, जहाँ पे जाके आप एक्चुअल लोगों से बात कर सकते हैं जो यहाँ पे गए। और उसके अलावा क्या है कि बैचलर्स या मास्टर्स या इवन पीएचडी पढ़ने से पहले और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप फॉरेन जा सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, प्राइज एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपके कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उनके ज़रिए भी आप बाहर जा सकते हैं, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। During your bachelor's, you went out, as you just said, that you went out to Switzerland and Hong Kong. You also must have faced some failures. हमेशा सब कुछ गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है, तो failures भी हुए होंगे. How did you deal with those failures? तो फेलियर्स तो होते ही हैं ना. सो in fact there is a monk and he once told me that success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. क्योंकि आप जब every failure not only is a failure but it also takes away a little bit of enthusiasm away from you, right? True. हर जो फेलियर में होता है थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है. तो सक्सेस वही है कि आप उसको चेज करते रहें. तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि जब मैं यहाँ पे एनटीयू में सेकेंड ईयर में था तो मुझे आई वांटेड टू गो टू यूएस और मेरा एडमिशन भी हो गया था, बट मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं तो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था यहाँ पे, और यूएस जाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मेरे पास नहीं थे. तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि मैं नहीं जा सकता कि मुझे पैसे नहीं है. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, कोई भी चीज़ करने के लिए दो चीज़ आपको स्पेंड करनी पड़ती है. अगर आपके पास लेट्स से अगर आपके बहुत पैसा है तो आप पैसा स्पेंड करोगे, ठीक है, टाइम बचाओगे. और अगर आपके पास जो है पैसा नहीं है तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो आई थॉट कि नहीं, जाना तो मुझे भी है, तो लेट मी जस्ट फिगर आउट कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अलाउ करती हैं आपको लेट्स से यूएस में जाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए विदाउट यू स्पेंडिंग योर मनी. तो ऐसे बहुत से आए, मतलब जब मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं या हांगकांग गया या चाइना गया या स्विट्ज़रलैंड गया या यूएस गया, तो उस जाने के और ना जाने के बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं ना. अगर मैंने 100 जगह अप्लाई किया होगा तब कहीं एक जगह पे एक्सेप्टेंस आया होगा, तो वो होता रहता था. तो बट मुझे लगता था कि ठीक है, मैं और ट्राई करूँगा, तो इस तरह से होता था. सो इसका कंक्लूजन है, हर्डल्स आएंगे बट रुकना नहीं है, नहीं. आगे चलते रहना है. यू आर ऑफनली रेफर टू एज विजडम एक्टिवेटर. तो क्या कोई जादू वादू करते हो? नहीं, जादू वादू नहीं करते हैं. सी विजडम से आप क्या समझते हैं, राइट? सो अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉपरली अगर असिमुलेट करें तो वो नॉलेज हो जाता है. अब नॉलेज को अगर आप ज़्यादा दिनों तक उसको प्रैक्टिस करें तो वो विजडम हो जाता है. तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि टमाटर जो होता है, टमाटो जो होता है, वो फ्रूट है या वेजिटेबल है? फ्रूट है. वो फ्रूट है. तो ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. अब नॉलेज क्या हुआ? नॉलेज ये हुआ कि अगर कोई बोले कि भाई मुझे फ्रूट सैलेड चाहिए तो आप उसे टमाटर मत डाल के देंगे, ठीक है. तो दैट इज नॉलेज, ठीक है. अब विजडम क्या हुआ? विजडम ये हुआ कि आप उस टमाटर से टोमेटो केचप या प्यूरी कैसे बनाएंगे, राइट? दैट्स योर विजडम. तो उसी तरह से व्हेन आई से विजडम एक्टिवेटर, तो मैं अपने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द विजडम, आई से आई एम विजडम एक्टिवेटर. कि ठीक है, मुझे नहीं पता सब चीज़ें, किसी को सब चीज़ें नहीं पता, बट हम मिल के डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को. तो आई ट्राई टू एक्टिवेट दैट डिस्कशन, और उस डिस्कशन के थ्रू जो लोगों के जो विचार होते हैं, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, जब आप उनको सुनेंगे तो दैट इज़ व्हाट यू टेक अवे. तो दैट्स व्हाई से आई एम विजडम एक्टिवेटर. जैसे कैटलिस्ट होता है आपकी भाषा में, तो मैं कैटलाइज करता हूँ डिस्कशन. You have a bestseller book on Ikigai. What is this Ikigai? जी, सो इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ का ध्येय क्या है? करना क्या चाहते हो लाइफ में? जैसे आपके 3 Idiots मूवी में आपने देखा होगा, करना क्या चाहते हो अल्टीमेटली. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू ट्रूली? अगर आपकी लाइफ से सारी उलझने हटा दें, अगर आपको पैसा ना दे तो आप क्या काम करेंगे? वही आपका पर्पस है. पैसे के लिए तो कोई कुछ भी करता है. अगर पैसा ना दो तो आप क्या करना चाहोगे? आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको पैसा नहीं देते? मैं तो भी साइंस करना चाहूँगी. तब भी आप साइंस करना चाहेंगे. तो वो आपका इकिगाई हो गया. उस तरह उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. तो इकिगाई बेसिकली वो है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरा क्या इकिगाई है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट.
ऑल ऑफ अस आर पैशनेट अबाउट समथिंग। पहले आप ये फिक्र कीजिए कि मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ। जैसे आपने बोला कि आप साइंस के लिए पैशनेट हैं, तो ठीक है आप साइंस के लिए पैशनेट हैं, पर उस पैशन में अब आप देखिए कि आपका स्किल क्या है, क्योंकि साइंस तो बहुत बड़ा है। उस साइंस में स्पेसिफिकली आपका क्या स्किल है, आपको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, या क्या पसंद है, उसमें भी क्या स्पेसिफिक आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप अपना पैशन जानिए, फिर उस पैशन में आप देखिए कि आपका स्किल क्या है, और उस स्किल को फिर आप इस तरह से यूज करिए सच दैट यू डिलीवर वैल्यू। क्योंकि जब तक आप वैल्यू नहीं डिलीवर करेंगे तब तक आपको कोई पैसे नहीं देगा उसके, तब तक वो हॉबी बन गई ना। फिर साइंस आपकी एक हॉबी है। साइंस को आप अपने लाइफ में कैसे इसको आप मोनेटाइज करेंगे, कैसे इसको आप अपनी लाइवलीहुड बनाएंगे, अगर वो आप नहीं कर सकते तो सस्टेनेबल नहीं है ना, बिकॉज मनी इज नीडेड, Yes. you need to sustain it. So ultimately, Ikigai is first of all finding what you're passionate about. And many people will go from cradle to grave without figuring out what they're passionate about. They never ask that question, what am I passionate about? Right? So you have to figure out what you're passionate about. Once you figure out what you're passionate about, then you have to figure out what skills do I have in that passion. And then you have to use that skill such that you get paid for it. Okay. Because if you don't get paid for it, पर ये इकिगाई जरूरी क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो और मैं आऊँ, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा निकले और मैं भी उस फील्ड में सक्सेसफुल निकलूँ, पर उस केस में इकिगाई का क्या रोल है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि इकिगाई का क्या रोल है। क्योंकि सक्सेसफुल तो आप किसी बिना पैशनेट हुए भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? लेकिन लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस, लाइफ इज अबाउट हैप्पीनेस। आप सक्सेसफुल हो भी गए तो क्या आप खुश रहोगे? आपको बनना था म्यूजिशियन, पापा मम्मी ने बोला नहीं बेटा डॉक्टर बन जाओ, अब डॉक्टर बन गए, तो आप खुश रहोगे क्या डॉक्टर बन के? नहीं रहोगे ना। आपको अंदर से लगेगा कि यार काश कि मैंने गाया होगा, आप सोचोगे कि काश कि आई बिकेम अ सिंगर। लाइफ में लोगों को जनरली उस चीज का गम नहीं होता जो वो नहीं कर पाए, उनको गम उस चीज का होता जो जिन्होंने ट्राई नहीं किया, राइट? Rahul, I've attended your lectures, and in one of those lectures, you explained the formula of happiness. I found it really interesting. So, can you explain that formula again for us? Sure. So that formula, if you recall, was happiness is equal to Attainment minus desire. attainment minus desire, right? So that's the formula. So let's look at it at three different levels. So in very simple terms, what it says is that when you attain more than you desire, then you are happy. So let's take an example. आपने बहुत सारे एग्जाम लिखे होंगे, आप कितनी मुश्किल से एम्स में आई होंगी, वहाँ पे भी एग्जाम लिखे होंगे, राइट? पहले बीटेक किया, फिर एमटेक किया, और अब आप डॉक्टर हर्षिता बनने वाली हैं। तो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम लिखे होंगे। तो जब एग्जाम लिखे होंगे तो कुछ सोचा होगा अच्छा इस एग्जाम में इतने नंबर आ जाए। मान लीजिए कि किसी एग्जाम में आप सोचे कि मेरे 80 आ जाने चाहिए इस एग्जाम में, और गलती से 90 आ जाए, वही सब क्वेश्चन, या हैप्पी, राइट? पार्टी, राइट? अच्छा, अगर जो आपने नहीं पढ़ा है वो आ गया, और आपके अभी जो है 80 आपने सोचा था लेकिन आपके 60 ही आए, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा। तो यू वेरी हैप्पी, राइट? वेरी अनहैप्पी, राइट? सो इसमें क्या है कि हैप्पीनेस इक्वेशन की जो फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो बहुत सिंपल है कि व्हेन यू अटेन मोर देन यू डिजायर, जब आपको जो प्राप्त होता है वो आपकी इच्छा से ज़्यादा है, तब आप खुश रहते हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास मारुति 800 हो, BMW मिल गई लाइफ में, वाह क्या बात है, राइट? सोचा कि इकॉनमी क्लास की टिकट ले लूँ, वहाँ पे किसी ने अपग्रेड करके बिजनेस में डाल दिया, वाह वाह क्या बात है, राइट? तो लाइफ में वही होता है कि जब आप ज़्यादा अटेन करते हैं फ्रॉम व्हाट यू डिज़ायर तो आप खुश हो जाते हैं। अब सेकेंड लेवल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, आपके कंट्रोल में क्या है, अटेनमेंट या डिज़ायर? आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अटेनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हमेशा वही मिला जो आपने सोचा है, हमेशा 90 100 यही मिला, तो आप अटेनमेंट कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? डिज़ायर। तो डिज़ायर कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है? आसान लगता है, होता नहीं है। डिज़ायर कंट्रोल करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स इन्फिनिट होती हैं, और
अगर आपकी डिज़ायर ज़ीरो हो गई तब तो आप जिंदा ही नहीं हो ना, तब तो आपकी कोई अभिलाषा ही नहीं है, तब तो कुछ अचीव करना ही नहीं है ना। तो डिज़ायर ज़ीरो नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन डिज़ायर को आप प्यूरीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप जो है यूनिवर्सिटी के टॉपर बने, तो ये एक अच्छी डिज़ायर है। अब लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको अटेन करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी कंट्रोल में केवल वो एफर्ट है, रिजल्ट नहीं है। आप केवल एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं बहुत कोशिश करूँगी, बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, मेहनत करूँगी, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आप टॉप ना करें। लेकिन आपको कम से कम ये तसल्ली है कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। गलती से अगर आप टॉप करें तो आपको लगेगा ना खाली खाली वाली हैप्पीनेस फील होगी, खाली खाली वाली खुशी है यार, मतलब गलती से फ्लूक में आ गया, मेरा फ्लूक में यहाँ पे एडमिशन मिल गया, राइट। वो फील होता है अंदर से। तो वो सेकेंड लेवल इंटरप्रिटेशन है कि आप जो है अटेनमेंट या डिज़ायर में से सिर्फ आप डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत मेहनत के बाद। डिज़ायर कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। अटेनमेंट को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्या आपको लाइफ में क्या अटेन होगा वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए आप एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को थर्ड लेवल पे आते हैं, जिसमें ये हैप्पीनेस इक्वेशन ऑल्सो बिकम्स द एथिक्स इक्वेशन। अगर मान लीजिए कि आपने डिज़ायर किया कि मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना ही करना है, कम वॉट में, कैसे भी टॉप करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे एग्जाम में? चीटिंग करेंगे। क्योंकि now you are not controlling your desire is controlling you, right? तो कोई भी सीईओ जिसने कभी भी अपने नंबर्स फर्ज किए हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के, कोई भी सेल्स पर्सन जिसने कभी भी किसी को ब्राइब दिया है, राइट, घूस दिया है, कोई भी स्टूडेंट जिसने कभी भी चीटिंग की है एग्जाम में, वो इसलिए नहीं की है क्योंकि ये लोग इनहेरेंटली बैड हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, दिमाग है, सब कुछ है। बट क्या हुआ ना कि इनकी जो इच्छा थी, जो वो अटेनमेंट माइनस डिज़ायर में जो डिज़ायर वाला पार्ट था ना, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि डिज़ायर स्टार्टेड कंट्रोलिंग देम। तो इस डिज़ायर को थोड़ा चेक में रखिए, ठीक है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इट्स लाइक द गेम ऑफ चेस, वेरी रूल्स आर वेरी सिंपल, प्ले करना मुश्किल है, राइट। तो डिज़ायर को कंट्रोल कैसे करें, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। उसका प्रोसेस है, तो कभी और बात कर लेंगे। ओके, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से क्या ये भी इंटरप्रिटेशन आता है कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, सो ऐसा लगता है कि हमारी हैप्पीनेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कभी आप ऐसा मिले हो किसी को जो जिसको बहुत पैसा है फिर भी खुश नहीं है? कभी मिले आप किसी को? कभी किसी फ़कीर को मिले हैं, किसी मंक को मिले हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाना भी मांग के खाता है और खुश रहता है, राइट। तो पहले तो ये है कि हैप्पीनेस पैसे पे डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। इट्स नथिंग टू डू विद आपके पास कितना है कितना नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ तो वो। अब दूसरी चीज़ कि हैप्पीनेस हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है कंट्रोल में। आपको हैप्पीनेस किस चीज़ से मिलती, पहले आप वो बताइए हर्षिता जी। डांस। तो डांस करना आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? अच्छा, इंडिया की नंबर 1 डांसर बनना नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम अपना जो हैप्पीनेस है वो गलत जगह ढूंढने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब तक मैं इंडिया की नंबर 1 डांसर नहीं बन सकती तब तक मैं हैप्पी ही नहीं हूँ। आप डांस की जगह फोकस करने की जगह आप वो प्राइस पे फोकस करने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभ्यास और बैराग। आप तो अगर आप करती तो आपको अभ्यास, रियाज ये पता होगा, राइट। तो आप रियाज या अभ्यास छोड़ करके आप जो है उस प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। तो प्राइस जो है ना उससे बैराग करना है आपको उससे डिटैच रहना है और आपको अपने अभ्यास पे फोकस करना है, बिकॉज आप वही कंट्रोल कर सकते हैं। फाइंड द जॉय इन स्मॉल थिंग्स। डेस्टिनेशन में जॉय नहीं है, जर्नी में जॉय है। डेस्टिनेशन पता नहीं आए कि नहीं आए, आपको नंबर 1 आप इंडिया के डांसर बने कि नहीं बने, और अगर आप नंबर 1 बन भी गई तो कितने दिन तक नंबर 1 बनी रहेंगी? कल को कोई और नंबर 1 बन जाएगा, उसके पहले कोई और वहाँ पे नंबर 1 था, राइट। तो हैप्पीनेस आप गलत जगह पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी ना हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस उन चीज़ों में देखनी है जिसमें आप रियली हैप्पी हैं, और वो बहुत सिंपल होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, है ना। So what are you planning to do in your future? As much as I know you, you've been a banker, you've been an author, and you've been a counselor. So what's next in line? Yeah, so essentially you're asking me what is my purpose in life, what do I want to do, right? So
as somebody who talks a lot about purpose to a lot of people, I think over time what I've realized is that my purpose is to help others find their purpose, and however that may happen. So that can happen through that counseling, the talking that I do with students like yourself, through my books where I write about these things. So I think I'll continue to inspire people. I think that is what my purpose would be. In immediate future, I have a few books which are coming out, all of them focused on purpose. So one of them is going to be about ESG and sustainability. Another one is about relationship, because these days people are also lost in purpose in relationship. There is situationship, relationship. I don't know how many ships are there. So I'm writing a book on that. So that's the immediate thing that I'm working on. But ultimately, I would say I would continue to keep writing, inspiring people, and motivating people. Actually, the purpose of this question was more to know about Ikigai, but a lot of people actually face this problem. They enter in one field thinking that it excites them, but then they get to know that no, there is no excitement, and they are not happy about it, but they are too scared to take a step back and move to any other field. It can be monetary pressure, or it can could be pressure from their family, peer pressure. So how to deal with it? Is it okay to take that step back? You have done this in your career, and was it like okay? Was it smooth for you? No, I would not say smooth or hard. What I would say is that in life, people don't often regret trying something and failing, but what they regret is failing to try. Okay, so अगर आपको कभी भी लगता है कि I want to change something, then you should do it, because you will always live with that regret कि काश ये किया होता. I wish I had done that. And the other way I explained you that is that if you talk about life, right? The beauty or the irony of life is that the lifeline is also deadline. Whatever you need to do in this life, you have to do in that period, right? And death can suddenly come, and your deadline is over, and nobody knows when that deadline suddenly comes, right? After this interview, I walk out. Something. Just don't say that. Yeah, but nobody can predict, right? Yeah. So at that moment, the only question I will ask myself is, was my life a success? And that basically means, was I happy? And if the answer is yes, then fine. But if the answer is no, and the answer is, I wish I could change something in my life, I wish I had done this, then that means that you already know what you want to change. But yet you don't do it because you think you have a lot of time, or you don't have the courage to do it. So I would always say, if you मन में अगर कुछ आ गया है तो उसको एक बार आप try कर लीजिए. Now the question to you asked is it easy? Is it difficult? There is family pressure, there is monetary pressure, there are a lot of pressures. I think the biggest pressure is the one we put on ourselves, right? हम अपने ऊपर जो pressure डालते हैं. तो एक बार आप कन्विंस हो जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेंगे, या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, उनको भी कन्विंस कर लेंगे. और of course there are monetary practical considerations. So like Shah Rukh Khan says, don't become a philosopher before you become rich. So sustain yourself, stabilize the ship, and then start looking at what else. For example, you said that you like dancing. Okay, so it can start as a passion, right? You could pursue your PhD, and you could pursue your research, and on the sides you could start participating in dance competitions in ways you could maybe you're not even dancing to compete, but you could start practicing the dance outside of your work. A point will come when you will get better at this, and maybe you will even start getting paid for that dancing that you do. So the point at which you jump ships is when 50% of your current income starts coming from this passion, because then you have a ray of hope that okay, part time I can do this. If I take it full time, then how much can I do it? Some people take that leap of faith without even having that 50%. That totally depends on you. बट अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप कभी फाइंड आउट नहीं करेंगे. तो ट्राई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग, then it's just your hobby. It's not sustainable. In order for it to sustain, you need to monetize it. You need to be able to produce money in the process. Your solution should be such that people are willing to pay for it. Only then it's your ikigai, because it has to be self-sustaining from within. Just because I like dancing
doesn't mean that I can make that a livelihood. My dance should be so good that people are willing to watch me, pay for that. Right? Otherwise, it's just a TikTok video.